that how he cracked his dream company. And also in the podcast we'll know कि आपको कितने DSA और DP के questions करने चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी preparation रखनी चाहिए. Before Microsoft, when I was in college, I used to, intern at ShareChat as an SD intern. Buzz is there for these big companies. Is it because of the salary? मतलब क्योंकि सबकी salary ranges approx 45 से 55 के बीच में होती है. Or is it because of the technology which they are working on? Or work? What is it exactly? Actually मैं teaching में बहुत ज़्यादा interest था और while I was interning at Coveroo, मुझे Coach Chef Educator Hiring Challenge में participate करा मैंने. And उधर मेरा हो गया था तो Coach Chef ने call किया and they asked me to start teaching on their platform. Hi everyone, my name is Shivangi and I'm a software engineer. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ उमंग है. He is currently working as a software engineer in Microsoft, but like us, he is also from a tier 3 college. तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो आज की पॉडकास्ट में थ्रू हिज जर्नी लेट्स नो कि टियर 3 कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का सपना हम कैसे देख सकते हैं. एंड जिनको ऐसा लगता है ना कि आप टियर 3 कॉलेज से हो और आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या अमेजॉन जैसी कंपनीज का ड्रीम नहीं देख सकते, सो यू आर नॉट कम्प्लीटली राइट. We have people with us, we have Umang with us जो कि हमें बताएंगे that how he cracked his dream company. And also in the podcast we'll know कि आपको कितने DSA और DP के questions करने चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी preparation रखनी चाहिए, कैसे college studies और projects और assignments के साथ अपनी preparation को manage करना चाहिए. So, hi Umang, can you please introduce yourself to our audience? Yeah, sure. So my name is Umang Agrawal, as Shivangi already introduced me a bit. And I am from ABES Engineering College, that is in Ghaziabad. I am a 2022 pass out, and out of college I joined Microsoft as a software engineer, and since last 1.5 years I'm working at Microsoft. Before Microsoft, when I was in college, I used to intern at ShareChat as an SD intern, where I worked in the search team, and I really did great stuff there. Apart from that, I have also been into teaching. So nice. When I was in college, I used to teach at an academy and Coach Chef, and during my final year I started teaching at Scalar. So yeah, that's pretty much about me. Umang, now that you're working in Microsoft, कॉलेज के टाइम पे ना बड़ा बज होता है कि Amazon में लग जाए, गूगल में लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट में लग जाए. मुझे समझ में नहीं आता सिंस आई एम इन अ स्टार्टअप कंपनी एंड आई फील यहाँ का भी वर्क कल्चर काफी अच्छा है, पे स्केल एंड ऑल एवरीथिंग इज ग्रेट, लाइक एट पार विद द फैंग कंपनीज. पर मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई दिस बज इज देयर फॉर दीज बिग कंपनीज. इज इट बिकॉज ऑफ द सैलरी? मतलब क्योंकि सबकी सैलरी रेंजेस अप्रॉक्स 45 से 55 के बीच में होती है. और इज इट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच दे आर वर्किंग ऑन और वर्क? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? So okay, let me answer this question. मैं पूरा तो नहीं बता सकता, but I think and I believe that कि जो बज़ है जो एक्चुअली में क्रिएटेड है वो हम जैसे लोगों ने ही क्रिएट किया है. जो एक्चुअली में एक फांग में काम करते हैं, दैट दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली क्रिएटेड दैट बज़ अराउंड कॉलेज स्टूडेंट्स. एंड जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाइक एट लीस्ट द फांग इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, दे जस्ट पोस्ट अबाउट like when they eat at a cafeteria, or maybe they just post their office videos and photos. So I think उससे थोड़ा बहुत बस क्रिएट हो गया है कॉलेज स्टूडेंट्स में कि वो वहाँ जाएंगे. और आई थिंक द पर्क्स दैट द बिग कंपनीज, एंड एक्चुअली दैट्स ट्रू कि जो भी बड़े कंपनीज है दैट रियली प्रोवाइड रियली ग्रेट पर्क्स. इवन एट माइक्रोसॉफ्ट वी गेट ऑलमोस्ट फ्री फूड एंड अ लॉट ऑफ अदर पर्क्स आर देयर, जिसकी वजह से आई थिंक दिस बज इज देयर. एंड सेकेंड थिंग आई थिंक कि वो एक्चुअली अब एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट वॉज स्टेबिलिटी. But during layoffs, every other company actually did laid off. But right. I think कि हाँ stability फिर भी at the end again stability is more in MNCs as compared to startups. तो वो एक factor होता है. And last but not the least, I think work life is something that these like companies like Microsoft, Google have very good work life. Amazon also has Amazon. I don't so lot of my friends are there in Amazon जिनके कुछ की वर्क लाइफ बहुत बेकार है, कुछ की बहुत अच्छी है, राइट. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन टीम टू टीम, बट आई थिंक दीज थ्री आर द फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज पर्क, सेकंड वन इज स्टेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज the work life that these companies provide are the reasons why there is a buzz around college students. Right. I totally agree. Perks and all तो बहुत रहते हैं. So yeah, I can understand कि ये buzz क्यों है. But again, another question कि क्योंकि आप एक tier 3 college से आते हो, so how do you evaluate your journey? कि मतलब आपको क्या लगता है कि tier 3 college वालों के लिए ये placement journey कितनी difficult होती है? So I feel कि tier 3 ये एक्चुअली में एक माइंडसेट है जो किसी भी स्टूडेंट को जिससे बाहर आ जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही.
and if they don't have good seniors out there in their own college, they should probably reach out to some known, just contact someone else. Maybe तुम्हारे कुछ Right. friends होंगे दूसरे college में, or maybe you can go on LinkedIn and try out finding good people who are actually there to help you and not make fool out of you. Right. And especially आज के टाइम पे तो it's very easy. You have so many platforms to reach out to people, to connect with them, talk to them, understand their experience, learn from them. तो आज के टाइम पे तो it's not difficult. So you have rightly pointed it out कि it's actually the mindset. हमको लगता है कि हमारे कॉलेज में environment नहीं है, we can't do it, and we like somehow give excuses to not work hard. Exactly. So I totally agree to your point. तो this brings in me the curiosity. मैंने आपका अभी एक YouTube वीडियो देखा था जिसमें you were explaining about your journey in 15 minutes, about your placement journey, जिसमें you said कि आपके first year, second year में you were not that serious for your preparation. So Right. now that you have got success or I would say you've got what you wanted, what do you think, how much it is important for people who are not, especially first year and second year students, to come on track on time? So आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है जनरली कि फर्स्ट ईयर में जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करा वैसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स एंड ऑल. सो मेरा ऐसा सजेशन होता है, और एक्चुअली में मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, ओपिनियन कह सकता हूँ मैं, कि जब कॉलेज में कोई भी जाता है तो ही और शी शुड फर्स्ट एक्सप्लोर ए सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स. ही और शी शुड नॉट डायरेक्टली लिसन टू समवन कि यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, एंड दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट. बिकॉज जो भी किसी ने कुछ भी उखाड़ा है, कोई भी प्लेसमेंट किसी ने भी ली है, तो वो उसके पर्सनल स्टेप्स रहे होंगे कुछ जिसकी वजह से उसने वो अचीव किया है. सो मेरा ऐसा मानना है कि जब when you join a college, make friends. That is the first thing that you should do. Make good friends, enjoy. अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो, there are lot of things that जो कि तुम कर सकते हो. Just start playing a sport, maybe start playing badminton, start playing volleyball. Because that is what जो हमने कॉलेज का एक पिक्चर बनाया होता है जब हम स्कूल में होते हैं कि कॉलेज में जाएंगे तो वो जो भी हमने मूवीज देखे हैं लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड ऑल, कैसे फेस्ट होंगे. तो जब तुम बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हो तो वो फेस्ट एंड ऑल वो थोड़ा मिसिंग होता है. बट एक चीज है जो किसी भी कॉलेज में मिसिंग नहीं होती, एंड वो है दोस्ती यारी. सो मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी भी कॉलेज में जाओ तो दोस्ती यारी करो, घूमो फिरो, थोड़ा खेलो, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन पता है ओजस्व, अभी लास्ट पॉडकास्ट मेरी थी ओजस्व के साथ, उसने क्या बोला मालूम है, फर्स्ट ईयर से वो उस लड़के ने बोला कि हम हॉस्टल में जाते थे तो वहाँ हम कोडिंग करते थे, हम क्लास में बैठते थे तो वहाँ हम कोडिंग करते थे. तो यू आर बिहेविंग लाइक वो पेरेंट्स होते हैं ना जो बच्चों को बिगाड़ते हैं, तुम मेरे ऑडियंस को बिगाड़ रहे हो. So let me, मैं रीजन बताता हूँ इसका, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग सिर्फ मतलब ऐसा होता है ना कि अगर सिर्फ पढ़ाई सिर्फ सोचते रहोगे कि यार ये मुझे ये करना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर दिमाग आदमी या किसी भी कोई भी मनुष्य अगर अंदर से खुश है तो वो बाकी सारी चीजें अपने आप करने लगता है. बट अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन दैट यू एक्चुअली आस्क्ड कि पैरेलल में यू शुड आल्सो थिंक अबाउट योर करियर. अब मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इसमें ही रह जाते हैं 4 साल, एंड उसकी वजह से एंड इसके ही डर से एक्चुअली में पेरेंट्स कहते होंगे कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ही करते रह जाओगे. सो ट्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बैलेंस. Exactly. And that balance is very much needed. If you just keep coding and you don't enjoy at all, that is also not going to help you anyways. You might go into depression actually. But again, right, let me come back to the point. So parallel में you should think about your career. Now you should actually decide कि तुम्हें जाना कहाँ है. If you want to really go into job, if you want to really go into software development, या तुम्हें अगर खुद का business करना है, that should be predefined कि तुम्हें करना क्या है, right? अगर वो predefined नहीं भी है, जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स. जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग किया चलो एसडी जॉब्स में कैसा होता है, क्या मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा, या मुझे बिजनेस रोल्स में जाना है, राइट, या मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, या मुझे एक्चुअली सेकंड ईयर तक थोड़ा फाइनलाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एग्जैक्टली एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में जब जा रहे हो फर्स्ट ईयर में तभी से स्टार्ट कर दो पैरेलली एक्सप्लोर करना. बट ऐसे मत करो कि यार फर्स्ट ईयर में गए एंड किसी को सुना था इसलिए स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट. हाँ, वो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि उससे तुम्हें डेफिनेटली करियर में एक एज मिल सकता है, तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, मे बी तुम बहुत अच्छी जगह चले जाओ. बट पता है, यू विल ऑलवेज रिग्रेट कि तुमने वो लाइफ एंजॉय नहीं करी, बिकॉज द टाइम विच इज पास्ट, वो स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ वो कभी लौट के वापस नहीं आती है. तो एंजॉयमेंट भी जरूरी है एंड पढ़ाई तो ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी तो करनी ही है. करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक्चुअली में बहुत टाइम है करियर बनाने का, राइट. आई थिंक कि अगर तुम सेकेंड ईयर के मिड में, राइट, लाइक 4th सेमेस्टर से अगर तुम सीरियस हो गए,
सो आई थिंक हाँ. यू विल रियली डू वंडर्स. तुम्हारे पास बहुत टाइम Right. होता है, तुम्हारे पास थर्ड ईयर पूरा होता है और तुम्हारे पास फोर्थ सेमेस्टर, तो तुम्हारे पास टोटल 18 महीने हैं पूरी प्रिपरेशन करने की. एंड फाइनल ईयर में तुम ट्राई करो कि इंटर्नशिप तुम्हारी लग जाए. तो 18 months is a really good amount of time for preparation. So, okay, now that you have told a lot about your college life and how you balanced all of your studies and extracurricular and साथ placement preparation also, I want to know that आपने कहाँ पर internships करी and like how did you apply for those internships? Okay. या श्योर. सो जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरी प्रिपरेशन रेडी थी. मुझे डीएस से मैंने जो भी मुझे लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने गाइड करा कि चलो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, वो मैंने पढ़ लिया. सीएस फंडामेंटल्स मैंने पढ़ लिया. तो 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने बना लिए. उसके बाद जब इंटर्नशिप्स लेने की बारी आती है और तुम एक टायर 3 कॉलेज से हो, टायर 3 माइंडसेट से हो, आई विल रादर से, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज नहीं आने वाले हैं और तुम खुद से एफर्ट जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा. तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने ही कॉलेज से कुछ सीनियर्स उठाए थे लिंक्डइन से, मेरे ही कॉलेज से जो 1-2 साल पहले पास आउट थे, वो जिस कंपनी में इंटर्न कर रहे थे या उन्होंने किया था या वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें, और वो कंपनीज बहुत बड़ी नहीं थी. अब तुम आजकल लोग क्या सोचते हैं कि यार वो सेकेंड ईयर में है और चलो लेट्स से वी ट्राई इन इंटर्नशिप इन गूगल, तो वो बहुत मुश्किल होता है एज ए टायर 3 स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे इंटर्न तुम अप्लाई करोगे रेफरल लेकर, उसके बाद तुम्हें पता नहीं आएगा या नहीं आएगा. तो मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग था. मैंने एक स्टार्टअप में, मेरे सीनियर थे, उनने मैंने रीच आउट करा. उस स्टार्टअप का नाम भी तुमने नहीं सुना होगा वैसे, और मैंने उनसे रेफरल लेकर उधर ही इंटर्न करी थी 2 मंथ्स की. क्या नाम है कंपनी का? एंगेज? कवर हुप. सो इट्स अ कवर हुप टेक्नोलॉजीज, दैट वाज द कंपनी नेम. उसके बाद जब वहाँ पे 2 महीने में था तो मुझे एक्चुअली में टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. और वाइल आई वाज इंटर्निंग एट कवर हुप, मुझे कोच शेफ एजुकेटर हायरिंग चैलेंज में मैं पार्टिसिपेट करा मैंने, एंड उधर मेरा हो गया था. तो कोच शेफ ने कॉल किया एंड यू नो दे आस्क्ड मी टू स्टार्ट टीचिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म. मैंने उस समय से टीचिंग स्टार्ट कर दी. तो मैंने कोच शेफ में अराउंड 6 मंथ्स पढ़ाया अन अकेडमी में. उसके बाद मैंने उधर पढ़ाया एंड उसके पैरेलल में ही एक और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मुझे आई थी एस्पर करके, ESPER. इसके लिए भी मैंने लिंक्डइन से ही अप्रोच करा था एक एचआर को. अच्छा, सीनियर्स को ही? अच्छा, एचआर को? या एचआर को मैंने ढूंढा था लिंक्डइन से और उन्हें मेल डाली थी एंड आई रियली गॉट द रिप्लाई. मैंने एक्चुअली बहुत सारे लोगों को किया था बट रिप्लाई सबका नहीं आता. उसके बाद उसके बाद जब ये इंटर्नशिप मेरी खत्म हुई, उसके बाद यू नो आई कंटिन्यूड माय टीचिंग एंड फाइनली अगेन मेरे एक सीनियर थे जो शेयर चैट में इंटर्न कर रहे थे और उनसे मैंने शेयर चैट के इंटर्न का रेफरल लेकर फिर अप्लाई करा था. तो शेयर चैट में मैंने फाइनली अपने फाइनल सेमेस्टर में इंटर्नशिप करी थी. तो आपके साथ एक एज पॉइंट ये हो गया कि यू वर गेटिंग हैंड्स ऑन नॉलेज इंटर्नशिप करके. Exactly. अपना नॉलेज भी ब्रश अप हो रहा था पढ़ा के. राइट. सो that's great. But then when did you actually started your coding preparation? Because second year के बाद third year से तो तुमने अप्लाई करना शुरू ही कर दिया था. So when did you started coding preparation? तो मेरी जो कोडिंग पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी वो अराउंड थर्ड सेमेस्टर के एंड में हुई थी एंड पूरा जो सेकेंड ईयर मैंने था और एक्चुअली मैं नेक्स्ट जो कि मेरा 5th सेमेस्टर है वो भी 5th सेमेस्टर भी मैंने पूरा कोडिंग करा. ये जो मैंने अभी बताया है वो एक्चुअली में 6th सेमेस्टर के मिड से स्टार्ट हुआ था इंटर्नशिप्स एंड ऑल. कोविड के अराउंड की बात है, ये 2020 एंड के अराउंड की बात है जब ये इंटर्नशिप स्टार्ट हुए थे. राइट. तो वैसे मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन थर्ड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर में की थी एंड उसके बाद आई जस्ट कंटिन्यूड एंड मैंने उस समय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की थी काफ़ी. तो उसकी वजह से मेरी डीएसए काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी एंड आई फील कि उससे मेरा कॉन्टेस्ट वाला जो कैपेबिलिटी था वो भी स्ट्रांग हुआ था एंड एक्चुअली दैट हेल्प मी इन क्रैकिंग ऑल द कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट फॉर ऑल दीज कंपनीज. So what all platforms did you use for your coding preparation? And then किस लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे? किस लेवल तक के क्वेश्चंस एक्चुअली आपने सॉल्व किए थे? Was it just easy और मीडियम या आपने डिफिकल्टी लेवल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए थे? मैंने स्टार्ट जो कोडिंग अपनी जर्नी है वो कोडशेफ से की थी एंड कोडशेफ में मैंने काफ़ी लॉन्ग चैलेंजेस दिए थे. तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में मैंने सिर्फ लॉन्ग चैलेंज दिया अपनी कोडिंग की जर्नी में. और स्टार्टिंग में ही एग्जैक्टली आया स्टार्टिंग में सिर्फ लॉन्ग चैलेंज. मेरा थोड़ा सा ऐसा मुझे ऐसा लगता है और लोग सुन के बोलते हैं कि थोड़ा उल्टा सा मेरा जर्नी है क्योंकि मैंने कभी हैकर रहे तो हैकर टच भी नहीं किया है. मैंने डायरेक्ट कोडशेफ से लॉन्ग चैलेंजेस से स्टार्ट किए हैं एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि मेरे स्टार्टिंग के 2 लॉन्ग चैलेंजेस में मुझसे एक ही क्वेश्चन हुआ था आउट ऑफ 10. तो क्वेश्चंस नहीं होते थे स्टार्टिंग में. ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने लॉन्ग चैलेंजेस से स्टार्ट किया और मैंने सारे किए, बट मैंने स्टार्ट जब किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि तुम्हारे पास 10 डेज जो होते हैं
दैट इज नॉट सो लॉन्ग चैलेंजेस का कंसेप्ट ही यही है कि तुम्हारे पास 10 days है एंड इट इज नॉट कि तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं 1 घंटे में या 2 घंटे में या 1 दिन में. उनके लिए वो लॉन्ग चैलेंज है ही नहीं जो 1 दिन में या 3 घंटे में कर दे रहे हैं सारे. लॉन्ग चैलेंजेस आर फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. तो क्योंकि तुम्हारे पास 10 दिन का समय है और तुम क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जो भी जिस चीज़ पे भी वो बेस्ड है वो तुम एक्सप्लोर करके पढ़ के वापस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो लॉन्ग चैलेंजेस जब मैंने 6 months दे दिया तो मेरी काफ़ी इंप्रूव हो गई रेटिंग्स में. 5 स्टार पहुंचा था कोडशेफ पे. कौन सी लैंग्वेज यू वर यूजिंग? C++ मैंने सीखा था आफ्टर माई सी इन कॉलेज. तो मैंने C++ में STL वगैरह पढ़ी थी जिसके जिसको यूज़ करके एक्चुअली CP बिकम्स अ लॉट ईजियर. बहुत सारी लाइब्रेरीज होते हैं उसमें. तो मुझे ये भी चीज़ एक सीनियर नहीं बताई थी कि STL इज़ रियली अ पावरफुल टूल. तो ये सारी चीज़ें सीख के मैंने जब स्टार्ट करा फिर मैंने कंटिन्यूस लॉन्ग चैलेंज दिए. तो पहले लॉन्ग चैलेंज में मेरा 1 हुए थे, दूसरे में 2 हुए थे. ऐसे इवेंचुअली देयर वाज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स बट इवेंचुअली देयर वाज वन कंटेस्ट इन विच आई सॉल्व्ड अराउंड 7 प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 8 or 9 जिसकी वजह से मेरी रेटिंग जंप करी थी. तो उसके बाद मुझे रियलाइज होता कि ओके अब मुझे शॉर्ट चैलेंज पे फोकस करना है. उसके बाद मैंने कोड फोर्सेस स्टार्ट किया था एंड फॉर कंटिन्यूस 1.5 years आई जस्ट स्टिक्ड विद कोड फोर्सेस. एंड फाइनल ईयर के 8th सेमेस्टर में मैंने फाइनली कोड फोर्सेस छोड़ा था व्हेन आई गॉट इन व्हेन आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप एट शेयरचैट. एंड कोड फोर्सेस पे मैंने अराउंड 100+ कंटेस्ट दिए थे शॉर्ट के. एंड उसमें ऐसा होता है कि कभी एक भी नहीं हुआ, कभी 1 हुए, कभी 2 हुए. उसमें तो बहुत अप्स डाउन होते हैं. कितना भी तुम्हें आता हो कोड फोर्सेस इज समथिंग कि ऐसा like एकदम you'll always get a new set of question, Exactly. a new problem statement. फिर दिमाग ही नहीं काम करता ऐसा लगता है. Right. Every single question on Code Forces has a capability to surprise you, and that is Right. something कितना भी आता हो Code Forces ऐसी चीज है कि शायद वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती है कभी कभी. Right. So, Nothing to get scared, but that's true. Right. So but what was with me कि मैं स्टिक्ड रहा पूरे 1.5 साल एंड फाइनली बहुत अप डाउन के बाद मैं एक्सपर्ट बना था. उसके बाद में जब शेयरचैट में इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो टाइम नहीं मिलता था. तो इवेंचुअली I stopped my journey. So mainly I use these 2 platforms, CodeChef and Code Forces. Okay. How much important it is according to you to solve the long challenges and the short challenges, and how much it is important for according to you to go into DSA and DP? Okay, so basically DSA जो भी है ना एक फिटनेस जैसी है कि तुमने अपने आप को रेडी किया है एंड CP is like a sport कि actually so for example if you are really good if you have a really good body, if you are really fit, it doesn't mean that you will be playing badminton very well. So for playing badminton you will need to master that sport first. You need to learn how to hit smashes. You need to be very fit. That is a prerequisite for playing badminton, right? So DSA is just like fitness, and now when CP comes into picture it is like a sport which is eventually going to use this DSA knowledge to participate in the contest, right? So मेरा ऐसा मानना है कि CP कर रहे हो तो do it out of passion, do it because you are loving it, and इवन ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं सो डू इट बिकॉज यू वांट टू क्लियर द ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑफ कंपनीज. बिकॉज उसके बिना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. आई सी कि जिसने बहुत ज़्यादा DSA करी, लीड कोड पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोज पीपल फाइंड इट लिटिल हार्ड टू क्लियर दीज ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑफ कंपनीज. क्योंकि सही बात है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे नया सवाल आ जाएगा. व्हाट इफ तुमने उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया हो. एंड टाइम भी लिमिटेड होता है, 3 घंटे या 1 घंटे में करना होता है. तो दैट CP एक्सपीरियंस हेल्प्स यू देयर. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू सॉल्व? कुछ आइडिया, बेसिक आइडिया, कितने क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे अगर प्लेसमेंट्स, मतलब ऐसे समझो कि नॉट एवरीवन इज अ स्कॉलर, नॉट एवरीवन इज पैशनेट, किसी किसी को सिर्फ जॉब पाने के लिए करना होता है. तो एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ओके आई विल आंसर इट इन 2 parts. फर्स्ट इज दैट मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे. तो मैंने ओवरऑल अपनी जर्नी में 2000 क्वेश्चंस किए हैं कंबाइनिंग ऑल द प्लेटफॉर्म्स. Oh my god. दैट इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन. ये 2000 क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कोडशेफ, कोड फोर्सेस और कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिस पे मैंने किए. लीड कोड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे. इंटरव्यू बिट पे मैंने काफ़ी, तो मैंने जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का जब समय आया था तो मैंने इंटरव्यू बिट प्रेफर किया था क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट का एक ऑप्शन होता है जिससे तुम्हें वो दिखता है कि कितने टाइम में तुमने क्वेश्चंस किए हैं. अगर तुमने रॉन्ग आंसर किए हैं तो उससे तुम्हारे पॉइंट्स कम होते हैं. तो दैट फीचर एक्साइटेड मी, इसलिए मैंने इंटरव्यू बिट से क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन कि कितने करने चाहिए, दैट इज देयर इज नो डायरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज हर आदमी की मैथमेटिकल स्किल्स की रीजनिंग स्किल्स अलग अलग होती है. एंड CP में मैंने देखा है कि जो जल्दी इंप्रूव करता है, जिसकी जल्दी रेटिंग अटेन होती है, वो उनकी होती है जिनकी पहले से मैथमेटिकल और दैट रीजनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है. एग्जैक्टली राइट. जिनकी एप्टीट्यूड अच्छी होती है उनकी भी थोड़ी फास्ट CP इंप्रूव होती है. राइट. तो मतलब CP में अगर
मास्टर मतलब सीपी अगर बेटर करना है तो यू शुड फोकस ऑन योर रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड लाइक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना सीखना लॉजिकल पड़ेगा. थिंकिंग, राइट, लॉजिकल थिंकिंग प्लस मैथ्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग. राइट. सो देयर इज नो डायरेक्ट आंसर कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, बट अगर तुम पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी कंसेप्ट हैं लाइक बाइनरी सर्च है या टू पॉइंटर्स है, जितने भी कंसेप्ट है पर कंसेप्ट तुम्हें इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने चाहिए जितने समझ में आ जाए कि वो कंसेप्ट है क्या. राइट. तो एग्जैक्टली कि कम that से is कम तुम more. क्वेश्चन देखकर राइट तुम क्वेश्चन देखकर ये फिगर आउट कर पाओ कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये. राइट. कम से कम अप्रोच और एक अप्रोच तो एटलीस्ट पता हो सॉल्व करने का. जरूरी नहीं है कि तुम सॉल्व कर पाओ पूरा क्वेश्चन, बट एटलीस्ट इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट. या सो एज आई गॉट टू नो फ्रॉम योर जर्नी, आपकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी में बहुत ज़्यादा रोल था आपके सीनियर्स और मेंटोर का. सो what do you suggest to my audience, like how much it is important to connect with your seniors and mentors and how much it is important to take the advice of mentors? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना यार कि सब सेम पाथ फॉलो करें, सब अपने रास्ते भी बनाते हैं लोग. तो एक या सो एक्चुअली along with seniors and mentors I think friends का भी बहुत important रोल होता है. एंड इवन लाइक आजकल कॉलेजेस में यू नो पीपल मेक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, सो इवन उनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है. सो अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है कॉलेज में या तुम किसी के साथ घूमते हो या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं इन जनरल, राइट, या तुम्हारा कोई भी ग्रुप होता है, हर किसी का एक ग्रुप होता है. सो आई थिंक कि अगर तुम उस ग्रुप को साथ लेकर चलोगे तो यू विल गो अ लिटिल फार एज कम्पेयर टू जो तुम अकेले कर सकते थे. लेट मी टेल यू द रीज़न. क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको मैंने हमेशा बोला कि यार तुम भी करो. उससे क्या होता है कि तुम्हारा एक वो इन्वायरमेंट बन जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो मेरे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया था और जब भी कोई कंटेस्ट आता था या यू नो कोई भी हमने देखा कि यार कोई हायरिंग चैलेंज आ रही है तो हम उसमें डाल देते थे, जिसकी वजह से सब लोग अचानक से होते थे यार चलो इसके लिए तैयारी करनी है या इसको देना है. तो एंड जब भी उस कंटेस्ट के बाद हम डिस्कस करते कि यार किसने कितने क्वेश्चंस किए एंड हम शेयर करते थे अप्रोचेस को. तो मेरा आंसर इसका ये होगा कि तुम अगर कोई कॉलेज में हो तो आई थिंक कि यू शुड मेक दैट ग्रुप जिसको तुम साथ लेकर चलो. Seniors and mentors can only guide you. They can't be with you during your preparation. For example, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं चाय पीते पीते क्वेश्चंस डिस्कस करता था, राइट. मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता था कि यार इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया एंड यू नो वो एक्साइटमेंट होती थी. तो मेरा ऐसा मानना है कि क्यूरियोसिटी समथिंग जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम्हें सीखना है. दैट इज फर्स्ट थिंग. तुम्हारा जो ग्रुप है उसमें तुम्हें वो एनवायरमेंट बनाना चाहिए जिसकी वजह से अगर कोई एक डिमोटिवेट होगा तो कुछ बाकी लोगों को देख के वो अपने आप वापस खड़ा हो जाएगा, राइट. एंड सीनियर मेंटर से गाइडेंस लेते रहो. दैट्स इट. राइट. एंड दिस ब्रिंग्स टू द पॉइंट कि वो जो ग्रुप तुम्हारा होगा ना उसे तुम्हें बहुत वाइजली सेलेक्ट करना है. डोंट कीप पीपल अराउंड यू जो कि तुम्हें पुल डाउन करे, जो कि तुम्हें डीमोटिवेट करे या तुम्हें किसी भी तरीके से डिसहार्टन करे फॉर योर फेलियर्स एंड ऑल ऑफ इट. तो सेलेक्ट करो ऐसे लोगों को जो तुम्हारे साथ जो तुम्हें भी ग्रो करने दें और खुद भी ग्रो हो साथ में. या दैट्स आल्सो करेक्ट. एंड इवन यू नो मुझे जब भी लगा कि कोई ऐसा ग्रुप में मेरा कोई ऐसा दोस्त है या यू नो जो कि मेरे सक्सेस को हैम्पर करने वाला या वाली है, आई जस्ट लेफ्ट दैट दैट ऑटोमेटिकली हैपेंस. क्योंकि तुम्हारा एक बार वंस यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर ड्रीम ना, बड़ा बड़ा सपना देखने लगोगे ना, तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि कौन उन सपनों के आड़े आ रहा है और कौन तुम्हें पुश कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो. दैट्स करेक्ट. Right. So, Umang, what were your major projects and like skill sets which you mentioned in your resume? टॉकिंग अबाउट माई रेज्यूमे, यार मैंने पर्सनली जनरली बताऊं तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था अपने कॉलेज में. एक प्रोजेक्ट था मेरा जो कि एक तो मैंडेटरी होता है. एक तो मैंडेटरी होता है. उसका ही मैं आंसर देने वाला था कि एक प्रोजेक्ट मैंने मेंशन कर रखा था रेज्यूमे में जो कि मेरा हमारा थर्ड ईयर का या फाइनल ईयर का शायद प्रोजेक्ट था जिसपे हम काम कर रहे थे, जो भी कंप्लीट नहीं था. बट उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत फायरबेस, गूगल की फायरबेस होती है और बाकी रिएक्ट नेटिव वगैरह थोड़ा बहुत सीखा था जो कि यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, बट वो कंप्लीट नहीं थी. तो मैंने कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कभी बनाई नहीं है. टॉकिंग अबाउट माई रेज्यूमे वाज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज माई प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से मेरी रेज्यूमे हमेशा यू नो जब भी एक्चुअली में जब हमेशा तो नहीं जब भी हुई है शॉर्टलिस्ट, सो आई थिंक वो मेरे स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से ही हुई है. तो दैट वाज हेवियर इन टर्म्स ऑफ यू नो डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस. सो पॉइंट टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि यू शुड ऑलवेज हैव अ यूएसपी. क्योंकि रिज्यूमे तो सब सबमिट कर रहे हैं, ठीक है,
प्रोजेक्ट्स तो वो बल्क वाले बच्चे भी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग तो बना ही ले रहे हैं, लोग एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, बट हाउ इज योर रिज्यूमे गोना स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड? उसके लिए कुछ तो ऐसे यूनिक पॉइंट्स होने चाहिए विच यू शुड मेंशन। एंड अगर वो जैसे इन उमंग्स केस ये टीचिंग कोई पहले से नहीं था, ही डिड नॉट डिसाइड कि ही विल गो फॉर टीचिंग, बट ही डिड इट एंड ही मेंशनड इट इन हिज रिज्यूमे एंड दैट गेव हिम एन एज. So you should always keep a USP in your resume which can keep you away from the crowd. So another question कि जैसे आप कह रहे हो कि tier 3 कॉलेज नहीं होता, tier 3 एक्चुअली माइंडसेट होता है. तो जब हम ऐसे कॉलेज में जाते हैं ना, तो शुरुआत में तो हम बहुत ऐसे छोटी छोटी कंपनीज का ड्रीम करते हैं. I want to know कि how your mindset got changed and like छोटी what was your dream when you started your like studies, और कब ये ड्रीम like फैन कंपनी की तरफ inclined हुआ? What was that trigger point when your mindset got changed? Yeah, so I just did my preparation, I started teaching and eventually मुझे मेरे सीनियर के थ्रू शेयरचैट में इंटर्न लगी. तो मुझे शेयरचैट से भी पीपीओ आया था एंड यू नो आई वाज अबाउट टू जॉइन शेयरचैट ओनली एज ए फुल टाइम इंजीनियर, बट उसी के पैरेलल माइक्रोसॉफ्ट का भी मेरा इंटरव्यू चल रहा था एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम देयर एज वेल. तो बिकॉज ऑफ माई पर्सनल गोल्स आई प्रेफर्ड कि यार थोड़ी मुझे वर्क लाइफ अच्छी चाहिए बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ किया ओवर शेयरचैट. बट मेरा ऐसा कोई ड्रीम कंपनी नहीं था यार कि मुझे स्टार्टअप में जाना है या एमएनसी में जाना है या मुझे एमएनसी में किस कंपनी में जाना है. दैट वाज नेवर द केस फॉर मी. आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. Okay, fair enough. So like how was the interview process in Microsoft? Like can you give us a detail कि पूरा कितने राउंड्स हुए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस था? सो माइक्रोसॉफ्ट में पहला एक ऑनलाइन कोडिंग कंटेस्ट हुआ था जिसमें 3 क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन डीपी का था, एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च का था और एक क्वेश्चन जनरल था मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि तीनों क्वेश्चंस तुम्हें शायद आई थिंक 90 मिनट्स में करना था एंड आई डिड इट विद इन 30-40 मिनट्स बिकॉज ऑफ माई सीपी एक्सपीरियंस हेल्प मी हियर. उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग दैट आई गॉट ए मेल फ्रॉम एचआर कि यार तुम्हारे 3 इंटरव्यूज होंगे एंड टोटल 3 इंटरव्यूज हुए थे. पहला एक टेक्निकल इंटरव्यू था जो कि मोस्टली डीएसए प्लस सीएस फंडामेंटल्स ओरिएंटेड था. Second interview again was very related. Second interview में rather than focusing on a question, he focused on my experiences. तो मेरे टीचिंग में और शेयरचैट के इंटर्नशिप में वो पूरा तरीके से घुस गया वो जो भी इंटरव्यूअर था. एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉट आई डिड एट शेयरचैट एंड वो मैंने बताया. और लास्ट राउंड में इट वॉज टोटली काइंड ऑफ एज अप्रोप्रिएट राउंड जहाँ पे मुझसे थोड़े बहुत डिज़ाइन क्वेश्चन पूछे थे कि अगर ऐसा कुछ करना है तो कैसे करेंगे. तो उसने कुछ बोला था फॉर एग्जांपल कि अच्छा टाटा मोटर्स कैसे इतने सारे गाड़ियों को डील करती है, कोई भी बुकिंग करता है तो किसको असाइन करना है और किस सेंटर में कैसे कार्स जाती हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे थोड़े बहुत बिजनेस ड्रिवन क्वेश्चंस थोड़ा. राइट. एंड इन जनरल मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज़्यादा पूछा था मुझसे थर्ड राउंड में एंड आई रियली एंजॉयड गिविंग द इंटरव्यू ऑफ इवन ऑल द 3 राउंड्स. एंड सेम डे आई गॉट ए मेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एट द एंड ऑफ द डे कि आई गॉट सिलेक्टेड. काफी फास्ट प्रोसेस था. बहुत फास्ट. तो लाइक पर फिर भी यार कुछ सारे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व हो पाए होंगे ना, मतलब कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए थे? सो फर्स्ट राउंड में मुझसे एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा था, बाकी सारी जो चीजें थी तो अगेन आई थिंक आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय द वे. बट मेरे इंटरव्यूज जो थर्ड राउंड में, जैसे थर्ड राउंड का पूरा जो इंटरव्यू था दैट वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ए क्वेश्चन एज आई सेड. That was totally based upon my life experiences. Right. Plus he asked me a design round जिसका कोई correct answer होता ही नहीं है. So it was about the thought process that you are going to share. And second round में again he just got into my share chat कि मैंने वहाँ पे क्या किया था. And the questions were also focused upon how did I improve the search results there at Moj app that I did. So and उसके बाद he just visited into one DSA question that actually I had already solved during my preparation. So I just did it. ओके. मतलब आपका पूरा एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा एंड इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव हर्ड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर फ्रेंड्स एज वेल. उनका जैसे 3 के 3 राउंड्स काफी डिफिकल्ट होते हैं. डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि किस टाइप का आपको इंटरव्यूअर मिला है, आपके रिज्यूमे में क्या है, आप क्या शोकेस करना चाहते हो. तो ऑफ कोर्स यू हैड द टीचिंग एक्सपीरियंस, तो पूरा का पूरा अटेंशन वहां पर आ गया. तो दे वर लाइक इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट. बट या फॉर एनीवन हु इज गोना गो फॉर द प्रिपरेशन इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आपके साथ यही इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या यही होगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर एंड योर रिज्यूमे. राइट उमंग? या. सो नाउ इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट में मुझसे ऑफ कोर्स डीएसए प्लस ऊप्स के क्वेश्चंस पूछे थे फर्स्ट राउंड में. तो ऊप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारा पूछा था सेकेंड राउंड में, जो कि rather than गोइंग वेरी डीप डाइव वो जनरली एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी
था, बट थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है उसको तुम्हें कोड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कंपाइल हाँ, टाइम हाँ. पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स. तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए एंड थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इन वॉट एवर यू स्पीक. दैट इज इट. Right. And what other important subjects? सो सब्जेक्ट्स में आई थिंक CS फंडामेंटल्स में ओप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर्चुनेटली मुझसे किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा है, तो मेरे लिए आई थिंक मैंने But it's an important subjects. तो Yeah, yeah. ये पूछ लेते, कभी कभी पूछ लेते हैं. important subjects में of course I will count OPS, computer networks, operating systems and DBMS, and of course your problem solving, that is DSA, is something that is important, and you should have a project also in your resume. So any advice which you would like to give to our viewers who are preparing or having a tier 3 mindset or just stuck in some or the other excuses कि नहीं हो पा रहा या कैसे होगा या स्टार्ट ही नहीं हो रहा या एंड ही नहीं दिख रहा है कि शुरुआत तो कर दी है, कहाँ तक करना है, कब तक करना है, what Okay. will be your advice to the people? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुश्किल तो है यार, पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल नहीं होता तो सब कर रहे होते, एंड मुश्किल है इसीलिए कुछ लोग कर पा रहे हैं. सो पहली चीज़ ये है कि एक्सेप्ट करो कि दिस इज समथिंग विच इज टफ एंड नॉट डूएबल बाई ऑल. नाउ Yes. द आंसर दैट यू शुड फाइंड इज कि हाउ यू विल बी एबल टू डू इट. सो आई वुड रादर से कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन पीपल हु हैव दैट टायर 3 माइंडसेट, यू शुड गेट अबव इट एंड यू शुड थिंक कि कोई भी चीज़ अगर टफ है तो उसको बाकी लोगों ने कैसे किया. फॉर एग्जाम्पल रिलेटेबल जो तुम्हारे जैसे कॉलेजेस में थे उन्होंने कैसे क्रैक किया, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बिल्कुल. सीखो, उनकी एक्चुअली में उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा देखो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी. तो रादर देन कॉपिंग पीपल यू शुड, बिकॉज होता क्या है ना कि कोई बंदा अगर किसी लेट्स से कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीपी का बंदा है राइट, एंड उसने सीपी से कोई गूगल जैसी कंपनी फोड़ दी, उससे जाके पूछोगे तो वो कहेगा भाई सीपी कर, राइट. कोई ऐसा सही बात बंदा है जो जीसॉक क्लियर करके बैठा है या ओपन सोर्स में बहुत अच्छा है एंड हु एक्चुअली क्रैक्ड ए वेरी गुड स्टार्टअप, उससे जाके पूछोगे तो वो कहेगा ओपन सोर्स कर. तो व्हाट सही पॉइंट बात है. आई एम ट्राइंग टू मेक इज जिस बंदे ने जो किया है वो वही बताएगा करने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग देम, लर्न डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग इनटू कंपनीज एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम. एंड प्रोवाइडेड ऑल दैट यू शुड ऑल्सो थिंक कि तुम उस बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे तुम्हारे साथ उनसे तुम बेटर कैसे हो, ताकि यू हैव बेटर चांसेस ऑफ क्रैकिंग दीज कंपनीज. Great. As he said कि it's very important कि हम ना लोगों के see you cannot have people around you always, but you can always go through the experiences of people, learn from them, and then create your own path so that you can achieve your success and your way of dreaming things. Right. So thank you so much Umang for being a part of the podcast and interacting with us. It was great talking to you and I hope to meet you very soon. So thanks again. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल. एक्चुअली आई होप कि कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी. I too hope the same. मतलब मेरा भी यही मोटिव है that people should get aware. See, हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे टाइम पे हमें गाइडेंस नहीं मिला for some reason or the other. I just don't want कि ये चीज़ कोई भी बोले. Right. So we are trying to do that only. So thanks a lot again. I hope you liked the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post a new video. Thank you.